Welcome to the class, students. Today we will be discussing about the discharge of contract. The word discharge means that when the contract comes to an end. So when the contractual relation that is there between the two parties, it comes to an end, we say that the contract has been discharged. Now there can be various reasons due to which there is discharge of contract, or we call them as the modes of discharge of contract. We are going to discuss these modes one by one. The first mode of discharge is through performance of the contract, right? So when the contract is performed by the parties, then it leads to the discharge of contract, because once the activity has been done, once the task that was supposed to be done in that particular contract is done by the parties, then it brings that contract to an end. So if you'll see here, it's written it can be through actual performance or attempted performance, which we also call as tender. So what is an actual performance? That each party was supposed to do something, they do it as per the terms and conditions of the contract, so performance takes place. Let's say for an example, I am selling my car for 10,000 rupees. I deliver the car to the person who is buying it, and in return I take 10,000 rupees. Both the parties have done their tasks. It's an actual performance of the contract, leads to the discharge of contract. Now what is an attempted performance? Herein we say that the promisor who is there, he or she offers that I want to complete my obligation under the contract, I want to perform the contract, but is unable to do so because of the promisee, because the promisee does not accept the performance. Fine. So one of the parties, who is the promisor, is attempting to do the act in the contract, is offering to perform his or her obligation under the contract, but the promisee does not allow to do so or refuses to do so at that point of time, then it is taken to be an attempted performance. If we have to say, or if we have to claim that the contract has been discharged now because I tried or I attempted the performance, but the samne wala party jo hai, the other party did not allow it, due to which I was not able to do it, and that is why the contract has now been discharged, then there are certain conditions which are to be met, जिन्हें हम कहते हैं essentials of a valid tender. अगर वो सब conditions meet out हुई हैं और किसी एक पार्टी ने attempt किया है perform करने का, but सामने वाली पार्टी ने उस attempt को नहीं होने दिया, then this first party who attempted the performance is discharged from his or her duties. क्या है essentials of a valid tender? First, it must be unconditional. So say for example, जब मैंने कहा that I want to sell my car for 10,000 rupees, मैंने कार, जिस दिन पे हमने कार देनी थी, मैंने कार डिलीवर करने के लिए कहा कि आज आप मुझसे कार ले लो, ठीक है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं, अभी मैं कार नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मेरी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, प्रोवाइडेड इट वाज अनकंडीशनल. अगर मैंने उसमें ऐसा कह दिया कि ठीक है आप मुझसे गाड़ी ले लो, लेकिन 10,000 रुपीज जो है, से फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि पेमेंट 1 महीने बाद होगी, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, और मैं उस पार्टी से कह रही हूँ कि आप मुझसे कार आज ले लो, लेकिन पेमेंट आज ही करनी पड़ेगी, आई कांट वेट फॉर 1 मंथ, तो मैंने एक कंडीशन लगा दी अपनी परफॉर्मेंस के साथ, विच वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस कंडीशन अर्लियर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर मैं कंडीशन लगा देती हूँ तो इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा. इट हैज टू बी अनकंडीशनल. Second, it has to be made at a proper time and place. So whatever time and place has been decided, it has to be done accordingly. The performance that you are attempting to perform must be of the whole obligation contracted for and not only for the part. So what is it saying? कि अगर आप इसे वैलिड टेंडर मानना चाहते हो, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मानना चाहते हो, तो उसमें आपकी जो भी ऑब्लिगेशन थी कॉन्ट्रैक्ट में, आप पूरा काम करने के लिए अभी ऑफर कर रहे हो. ऐसा नहीं कि आधा अभी मैं कर देती हूँ, बाकी बाद में कर दूंगी, राइट? क्योंकि वो एक तरह से एक कंडीशनल चीज हो गई. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, if I am the party who is buying the car, I had to make a payment of 10,000 rupees, और मैं सामने वाली पार्टी को ये कहती हूँ कि आप मुझे गाड़ी दे दो, आज मैं आपको 7,000 रुपीज दे दूंगी और बाद में 3,000 रुपीज दूंगी, और सामने वाली पार्टी कार देने से मना कर देती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं दूंगा, मुझे पूरे 10,000 रुपीज चाहिए.
तो क्या ये मेरी तरफ से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस माना जाएगा? क्या मैं बाद में ये कह सकती हूँ कि मैंने तो ऑफर किया था, पैसे ले लो और मुझे गाड़ी दे दो, लेकिन आपने नहीं दी? नहीं माना जाएगा. Why? Because one, I am putting conditions in this. Second, I am not fulfilling all my obligations. मुझे 10,000 रुपए देने हैं, मैं उसमें से सिर्फ 7,000 रुपए देने की बात कर रही हूँ, तो मैं पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की बात कर रही हूँ. Then, if the tender relates to delivery of goods, ठीक है, कोई goods deliver होने हैं, then the promisee must be given an opportunity to check these goods and see if they are according to contract or not. So some goods are being bought from one person, और जो promiser है वो कहता है कि मैं goods deliver करना चाहता हूँ, deliver करना चाहती हूँ आपको, आप ले लो मुझसे goods, लेकिन बिना check किए ले लो. ठीक है, बस जो मैं दे रही हूँ goods वैसे के वैसे ले लो. और अगर आप नहीं ले रहे हो, आप कह रहे हो कि पहले मैं चेक करूंगी या पहले मैं इसको चेक करूंगा एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे लेने हैं, तो पार्टी ये नहीं कह सकती कि मैंने अटेम्प्ट किया था. You have to give that other party a chance to check those goods. If they are asking for that opportunity of checking the goods, that whether they are as per the contract or not, उसे आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने परफॉर्मेंस से मना कर दिया. Then it has to be made by a person who is competent to contract and to a person with whom the contract has been entered into. So if I was the person who entered into a contract, तो मैं ही ऑफर कर सकती हूँ उसकी परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस. एंड सिमिलरली किसको ऑफर कर सकती हूँ? जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था उनके साथ या उनके ऑथोराइज्ड एजेंट के साथ. The next condition is that if there are several joint promises, right? There the other parties, they are say a group of people together, then an offer of performing the contract to any one of them is a valid tender. So let's say for example, I am selling goods to a group of people, ठीक है, जो goods purchasers हैं, they are a group of say 5 friends who are buying it from me together. वो इकट्ठे मिलके पैसे contribute करके दे रहे हैं and I am selling goods to them. तो अगर मैं उन पांचों में से किसी एक को भी ऑफर करती हूँ that today I am ready to deliver the goods and you pay me the money whatever we have decided in the contract, then it will be taken to be a legal tender. जरूरी नहीं है कि मुझे उन सबको ही inform करना है. I can inform any one of them. And if it is the contract related to money, जहाँ पर payment होनी है money की, then the amount must be tendered in the legal money, legal tender money. ठीक है, जो जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो वो इंडियन रुपीज में ही मैं पेमेंट करूंगी, तभी वो लीगल टेंडर मनी मानी जाएगी. Until and unless it has been decided that the payment has to be made say in dollars or pounds etc. Now, what would happen when the other party refuses to accept a valid tender? अभी हमने valid tender के clauses पढ़ लिए, valid tender की हमने essentials पढ़ लिए कि ये अगर आप कर रहे हो, it means you are attempting to perform the contract. Now, if the other party is refusing to accept this valid tender, what would be the impact? The impact would be that it will be seen as if this other party has breached the contract. They are not allowing the performance of the contract. If I am the one who offered for the performance of the contract, then I am discharged from my duties now. मुझे दोबारा से वो कंपेल नहीं कर सकते हैं कि मैं फिर से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट करूं या अभी ये मानूं कि परफॉर्मेंस नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का. मेरी तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया और अगर मेरा कोई लॉस हुआ है, आई कैन स्यू द अदर पार्टी इन द कोर्ट. जब हम टेंडर ऑफ मनी की बात कर रहे हैं कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है वाइल पेमेंट ऑफ मनी, वहां पर थोड़ा सा हमारी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं. Say if I have taken a loan of 50,000 rupees from someone, ठीक है, and I had to return it back after 1 month's time. तो मुझे 50,000 रुपीज किसी को वापस करने थे और उन्होंने कहा था कि 1 मंथ के बाद आप पे 1 मंथ के लिए आपको इंटरेस्ट इस पे साथ में पे करके 1 मंथ में मुझे रीपे करना है. आफ्टर द लैप्स ऑफ 1 मंथ आई टेक दो 50,000 रुपीज प्लस द इंटरेस्ट अमाउंट टू दैट पर्सन. ठीक है, मैं 50,000 रुपीज जो लोन का अमाउंट लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उस पर जितना भी इंटरेस्ट बन रहा था, वो पैसा लेकर उनके पास जाती हूँ और कहती हूँ कि आप मुझसे पैसा ले लो. बट ही और शी इज नॉट टेकिंग द मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो नहीं ले सकते, उनके पास अभी कहीं पर जा रहे हैं, अपने पास रखना नहीं चाहते या वॉट एवर मे बी द रीजन. दिस पर्सन सेज कि नहीं अभी नहीं, एक काम करना, तुम मुझे 1 हफ्ते बाद दे देना इस पैसे को.
ठीक है, अब इस केस में भी एक तरह से मेरी साइड से अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई. आई टुक दैट मनी, I gave it unconditionally, it was at proper time and place, पूरी obligation यानी कि 50,000 rupees plus the interest amount I was ready to pay, right? I was giving it to the person who is competent to contract, I was giving it to the proper person with whom I have entered the contract, so all the conditions I was meeting up. Does that mean that it will discharge me of my liabilities और बाद में मुझे वो 50,000 rupees और वो interest amount pay ही नहीं करना पड़ेगा? लॉ कहता है नहीं, ऐसा नहीं है. जब हम मनी की बात कर रहे हैं तो आपने लोन लिया है किसी से, वो पैसे तो आपको उसे वापस करने ही पड़ेंगे. ठीक है, वो आज नहीं ले पाए आपसे पैसे, उन्होंने मना कर दिया, इट मीन्स आपने अटेम्प्ट कर दी थी परफॉर्मेंस, विच इज फाइन, बट दिस डज नॉट डिस्चार्ज यू ऑफ योर लाइबिलिटीज. सिर्फ क्या होगा कि 1 महीने तक का इंटरेस्ट मुझे पे करना था, मैं एग्जैक्टली 1 मंथ के पास बाद उन्हें पैसे देने के लिए चली गई, 50,000 रुपीज प्लस द इंटरेस्ट ऑफ 1 मंथ. उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना, लेकिन वो जो 1 हफ्ते का डिले उनकी तरफ से हो रहा है, सामने वाली पार्टी की तरफ से हो रहा है, उसके लिए मैं इंटरेस्ट पे नहीं करूंगी. मैं इंटरेस्ट सिर्फ उसी टाइम तक पे करूंगी जहां तक मैं पैसा वापस लेकर गई. अगर सामने वाली पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया पैसा लेने से, तो उस रिफ्यूजल की डेट से मेरे ऊपर इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन जो है वो बंद हो जाएगी. उसके बाद के पीरियड का इंटरेस्ट मैं पे नहीं करूंगी, उससे पहले का जो इंटरेस्ट है प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दैट आई विल हैव टू पे बैक. So this is the first mode of discharge of contract performance, which can be either an actual performance or the attempted performance. The second mode of discharge is through lapse of time. यहाँ पर लॉ ये कहता है कि जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का है कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का कोई मतलब नहीं रह जाता. अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो हम कहेंगे कि अगर उस फिक्स टाइम में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, इट स्टैंड्स टू बी डिस्चार्ज्ड. और जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिस पार्टी का फॉल्ट नहीं है, वो दूसरी पार्टी को स्यू कर सकती है फॉर द डैमेजेस सफर्ड. ठीक है, इसमें एक एग्जांपल है, इट्स गिवन इन योर बुक आल्सो, दैट से अ गर्ल इज गेटिंग मैरिड. ठीक है, उन्होंने अपनी वेडिंग ड्रेस जो है वो एक बुटीक में दी टू स्टिच इट. अब इफ हर वेडिंग इज से इज ऑन 2nd of January, फाइन, तो उनको ऑब्वियसली वो जो वेडिंग ड्रेस है वो 2nd of January से पहले पहले चाहिए. अगर वो वेडिंग ड्रेस उनके पास 2nd January तक या उससे पहले नहीं आती है तो उनके लिए वो वेस्ट है, राइट? सो से the boutique delays the stitching of that wedding dress and they deliver that wedding dress on 5th of January. उनकी शादी कब थी? 2nd of January की शादी थी, वो डिलीवर कब करते हैं? 5th of January को. तो ये जो गर्ल हैं जिन्होंने बुटीक पे स्टिचिंग के लिए दिया था, she can refuse to accept that dress. She will not be bound for making any payment for the dress, and rather she can sue this boutique for the delayed performance of the contract, because in this the time was of essence. अगर टाइमली डिलीवर नहीं हुआ है वो ड्रेस, तो उस ड्रेस का कोई मतलब नहीं रह गया, उसका कोई फायदा नहीं रह गया. फाइन. Then the third mode of discharge of contract is through mutual consent, which has further 5 subclassifications. Mutual consent of the parties. First क्या है? Novation. Novation का मतलब होता है something new. ठीक है, तो novation in contracts का मतलब हुआ when a new contract comes into place और वो existing contract को substitute कर देता है. तो एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है. जब ये नया कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसका कंसिडरेशन ही यही है कि म्यूचुअली पार्टीज ने डिसाइड किया कि उनके बीच में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, दैट इज कमिंग टू एन एंड. दिस इज द कंसिडरेशन ऑफ दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट, दैट पुराना कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग टू एन एंड एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग इनटू इट्स प्लेस. अब ये नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किन के बीच में होगा? It can be between the same parties, जिनके बीच में वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, और between the different parties. तो यहाँ पर पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं, राइट? सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था, जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है हमारा,
उसकी जो पार्टीज थी they all must consent about this new contract. तो अगर कोई एक पार्टी रिफ्यूज कर रही है, कोई एक पार्टी नहीं मान रही है, तो म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, तो उसे हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते. They have to both the parties they have to agree that we are entering into a new contract, or a new contract that is coming into place is substituting the old contract between us. The old contract stands discharged. Fine. There is a case law of Satish Chandra Jain versus National Small Industries Corporation. Now herein the appellant जो अपील कर रहे हैं Satish Chandra Jain, he stood as a guarantor of funding done to the proprietary business venture. ठीक है, उन्होंने सोल बिजनेस वेंचर खोल रखा था, उसके he was acting as a guarantor. Now later जो ये पर्सन है सतीश चंद्र जैन, उनके जो बेटे हैं उन्होंने उस बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया. क्या कन्वर्जन किया? अब वो प्रोप्राइटरशिप फर्म से वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी, राइट? और जितने भी क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने लोन दे रखा था, जिन्होंने पैसे दे रखे थे, उन्होंने अपना कंसेंट दे दिया कि फाइन, वी आर फाइन विद दिस चेंज कि आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हो, वी आर ओके विद इट. सो देयर वाज अ कंसेंट. Now, when this went to court, the case went to court, it was held that when the subsequent changes have taken place, right, a new contract has come into place. तो जो appellant की गारंटी थी, जो उन्होंने पहले दे रखी थी गारंटी, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है. तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज इन सब पार्टीज ने मिलकर ही ये कहा है कि हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटेड मान रहे हैं और उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है. Then the second sub part within this is alteration. नोवेशन में हमने क्या कहा था कि ऑल टुगेदर एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है. ऑल्टरेशन में किसी एक या एक से ज्यादा जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें चेंज किया जा रहा है, एंड देयर आर सम मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस. ठीक है, जिससे एक मेजर इंपैक्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट पे, बट ऑल टुगेदर पूरा कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट वैसा का वैसा है, सिर्फ उसमें कुछ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो चेंज किए जा रहे हैं. जब हमने नोवेशन की बात करी तो हमने वहां पे ये कहा था कि हो सकता है वो वहां पर पार्टीज ही चेंज हो जाए, राइट? फॉर एग्जांपल जो हमने केस लिया वहां पर पहले जो पार्टी थी दैट वाज दी फादर हु वाज देयर विद दी गारंटर्स, लेकिन जब बेटे ने उस बिजनेस का मॉडिफिकेशन कर दिया तो वहां पे अब पार्टी जो है वो बेटा बन गया इंस्टेड ऑफ द फादर, बिकॉज नाउ ही हैज टेकन ओवर द कंपनी. सो इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू पार्टीज. ऑल्टरेशन के केस में पार्टीज चेंज नहीं होती हैं, पार्टीज सेम रहती हैं. पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट चेंज, देयर इज ओनली चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नोवेशन के केस में दोनों चीजें हो सकती हैं. हो सकता है कि सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हो सकता है कि टर्म्स और कंडीशंस और पार्टी दोनों चेंज हो रही हो सकता है सिर्फ पार्टीज में चेंज आ रहा हो, right? So it may or it may not involve the variation in terms and conditions. Then the third part under the mutual consent discharge of contract is through rescission of the contract, which means termination of the contract. ठीक है, rescinding the contract जो हमने पहले भी पढ़ा है कि दोनों पार्टीज आपस में मिलकर ये कहती हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, वी वांट टू एंड इट ओवर हियर. तो जैसे हमने फर्स्ट परफॉर्मेंस के टाइम पे जो एग्जांपल लिया, दैट आई एम सेलिंग माय कार फॉर 10,000 रुपीज. नाउ आई वाज सपोज्ड टू डिलीवर दैट कार ऑन 5th of January टू द बायर, और हमने कहा था कि बायर जो है वो 7th of January तक पेमेंट कर देंगे, ये हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था. अब से ऑन 3rd of January, दैट मीन्स बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 5th को आई वाज सपोज्ड टू गिव अवे दैट कार. ऑन 3rd of January मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अभी गाड़ी नहीं बेचनी, तो मैं सामने वाले बायर को फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि नहीं, मैं ना गाड़ी अभी नहीं बेचना चाहती हूँ, सो इफ यू ऑल्सो अग्री वी विल रिसाइन दिस कॉन्ट्रैक्ट. और सामने वाली पार्टी भी अगर अग्री कर लेती है, बिकॉज देयर हैज टू बी म्यूचुअल कंसेंट, तो सामने वाली पार्टी भी अग्री कर लेती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप गाड़ी नहीं बेचना चाहते, इट्स फाइन फ्रॉम माई साइड, वी रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, वी ब्रिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट टू एन एंड, तो उसे हम रेसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज. देन इज रेमिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. रेमिशन का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर परफॉर्मेंस.
मैंने किसी से 50,000 रुपीज का लोन लिया था, ठीक है, अब मुझे उनको वापस करने हैं 50,000 रुपीज, मेरे पास 50,000 रुपीज नहीं है, आई हैव से ओनली 40,000 रुपीज विद मी। तो मैं उन्हें जाके कहती हूँ कि मेरे पास 40,000 ही हैं, आप 50,000 जो मुझे आपको वापस देने थे वो मैं नहीं इकट्ठे कर पा रही हूँ, आप मुझसे 40,000 ही ले लो। और सामने वाली पार्टी ये कहती है कि ठीक है तुम 40,000 ही दो और हम इसको अकाउंट को सेटल कर देते हैं। So this will be known as remission of the contract and it leads to the discharge of contract. Again, both the parties have to agree. जो कम दे रहा है उसकी तो agreement obviously है ही, जो कम पैसे वापस ले रहा है उसकी भी agreement होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कुछ सेल आउट कर रहे हैं, जैसे हम गाड़ी ही सेल आउट कर रहे थे, गाड़ी 10,000 रुपए के लिए बेच रहे थे, सामने वाली पार्टी ये कहती है खरीदने वाले दिन पर कि 10,000 रुपए तो मैं नहीं अरेंज कर पाया हूँ, आप मुझसे 8,000 रुपए ले लो, ठीक है। नाउ इट इज अपॉन मी कि मैं वो लेना चाहती हूँ या नहीं लेना चाहती हूँ। इफ आई अग्री, ठीक है, तो आई एम एक्सेप्टिंग द लेसर परफॉर्मेंस। 10,000 रुपए लेने थे लेकिन मैं 8,000 रुपए लेकर ही उसको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान रही हूँ, देन दिस इज टर्म्ड एज रेमिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट इज वेवर। वेवर का मतलब ये होता है जहां पे आप इंटेंशनली यू आर गिविंग अप द राइट ऑफ अ पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यू टू दैट यू आर डिस्चार्जिंग हिम और हर फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। रेमिशन जब हम कर रहे हैं तो हम कम परफॉर्मेंस ले रहे हैं, वेवर के केस में आप ऑल टुगेदर वेव ऑफ कर रहे हो उसकी ऑब्लिगेशन को। तो अगर मैंने 50,000 का लोन लिया और उसकी जगह मैं 40,000 पे बैक करने की बात कर रही हूँ और सामने वाली पार्टी अग्री कर रही है तो वो रेमिशन है, फाइन। लेकिन मैं 50,000 रुपए का लोन लिया था, मैं पैसे वापस ही नहीं दे पा रही हूँ और सामने वाली पार्टी मुझे कह देती है ठीक है मैं तुम्हारा ये लोन वेव ऑफ कर रही हूँ, मैं ये लाइबिलिटी तुम्हारी डिस्चार्ज कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि वो 50,000 के 50,000 में खत्म कर रही हूँ, देन दैट विल बी नोन एज दी वेवर। जब सामने वाली पार्टी खुद से वेव ऑफ कर रही है हमारा कुछ भी पोर्शन, द पेमेंट दैट वाज सपोज्ड टू बी मेड और द ड्यूटी दैट वी वर सपोज्ड टू डिस्चार्ज। Next is through the breach of contract, wherein we say that one of the parties is not performing the contract. Okay, one of the parties is taking a step back or is failing in performing his or her obligation, then that is known as the breach of contract. यहाँ पर भी दो तरह का breach हो सकता है, actual and anticipatory. Actual breach of contract का मतलब क्या है कि जिस दिन ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना था, जो हमने डेट फिक्स की थी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन वन ऑफ द पार्टीज डिफॉल्टेड एंड दे डिड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी व्हिच वाज फिक्स्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और जो दूसरी पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी है, दे कैन स्यू द अदर पार्टी फॉर द डैमेजेस। तो हम अपनी गाड़ी बेचने के लिए जा रहे थे, हमने 10,000 रुपए में गाड़ी बेचनी थी। ऑन द डेट व्हेन इट वाज डिसाइडेड 5th ऑफ जनवरी मैं अपनी गाड़ी देने जाती हूँ, लेकिन सामने वाली पार्टी मुझे 10,000 रुपए देने से मना कर देती है। दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर इफ आई हैव सफर्ड एनी डैमेजेस बिकॉज ऑफ दिस, आई कैन स्यू द अदर पार्टी, फाइन। और द अदर वे राउंड, जिन्होंने मुझसे गाड़ी खरीदनी थी वो 10,000 रुपए लेकर के आते हैं लेकिन मैं गाड़ी देने से मना कर देती हूँ, तो ये मेरे पार्ट पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड दैट अदर पार्टी कैन स्यू मी फॉर द डैमेजेस। ये हो गया हमारा एक्चुअल ब्रीच। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या है कि जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली टेक प्लेस करना था उससे पहले ही किसी एक पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया, डिड सम एक्ट ऑफ सच अ काइंड, कि अब वो एक्चुअल डेट आने पे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। अगर हम यही एग्जांपल लें कि गाड़ी सेल ऑफ करनी है, ठीक है, मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 5th को अपनी गाड़ी दे दूंगी और आपसे 10,000 रुपए ले लूंगी। अब 5th तक तो दैट पर्सन वुड बी वेटिंग, लेकिन 2nd ऑफ जनवरी को मैं जाके अपनी गाड़ी किसी और को बेच आती हूँ, ठीक है, आई सेल इट ऑफ टू समबडी एल्स फॉर वट एवर मनी, ठीक है, मैंने 12,000 रुपए में या 8,000 रुपए में या 10,000 रुपए में ही किसी और को वो गाड़ी 2nd को ही सेल ऑफ कर दी। अब इसका मतलब क्या, 5th अभी नहीं आया, ठीक है, मेरा जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने किसी एक पार्टी के साथ डील करी थी, मैंने कहा था 5th जनवरी को मैं आपको अपनी गाड़ी दूंगी और आपसे 10,000 रुपए लूंगी। 2nd जनवरी को ही मैंने अपनी गाड़ी किसी और को ऑलरेडी सेल ऑफ कर दी। अब दिस इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये ऑब्वियस है जब मैं एक बार अपनी गाड़ी 2nd को ही किसी और को सेल ऑफ कर चुकी हूँ
तो फिफ्थ को, जिस पार्टी को मैंने प्रॉमिस किया था, उनको तो मैं अपनी गाड़ी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि वो गाड़ी अब मेरी रही नहीं. आई हैव ऑलरेडी सोल्ड इट ऑफ, राइट? सो दिस इज एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि जो प्रॉमिसी है उनको तो अब परफॉर्मेंस करनी नहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि उनको पता चल चुका है. अगर उन्हें पहले ही पता लग गया है कि मैं अपनी गाड़ी किसी और को सेल कर चुकी हूँ, देयर हैज बीन एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करके मुझे इमीडिएटली स्यू कर सकते हैं डैमेजेस के लिए. दैट मीन्स ही विल नॉट हैव टू वेट फॉर द डेट विच हैज बीन प्रॉमिस्ड टू हिम और हर, या वो तब तक वेट कर और फिर दोबारा मुझे उस समय पर जाकर मुझे वो स्यू कर सकते हैं. सो बेसिकली एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच में फर्क इतना ही है कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब वो एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस आ गई है एंड वन ऑफ द पार्टी डज नॉट परफॉर्म. एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है कि उस डेट से पहले पहले ही सामने वाली पार्टी को पता लग गया कि आप अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो वहां पर उन पार्टी के पास एक एक्स्ट्रा राइट हो जाता है कि दे डू नॉट हैव टू वेट टिल द लास्ट डेट when it what was promised to them. Before that only they can sue the other party for the damages. Next mode of discharge is through the operation of law, which we will be doing in the next class.